भी अपने एजेंट भेज रखे हैं चर्च में? नहीं, आपको इतना भोला नहीं रहना है। Do not stay so अगर simple. कोई ऐसी गलत प्रोफेसी करता है, immediately run to your elders, tell your pastors कि ऐसा वचन मेरे जीवन में बोला गया था, हम आपके साथ एग्री करके पाँव के तले रौंद देंगे ऐसे गलत शब्दों को। If anyone gives a wrong prophecy to you, come to your pastors, your leaders, and we will destroy that prophecy with you, agreeing against that prophecy. Amen. मैंने आपको क्या बोला था? इस घर में आपको समय से पहले जाने नहीं देंगे। I told you, in this house, we will not let you go before your time. Amen. बहुत कुछ करना है कलीसिया। There is so much we have to do, church. बहुत कुछ करना है। There's too much to do. पिता कहता है, with long life I will satisfy you. The Father says, मैं तुझे दीर्घ आयु से संतुष्ट करूंगा, तृप्त करूंगा। Amen. Hallelujah. So let's come here. So it says, thou shalt not fear the demons that walk by night. तू उन दुष्ट आत्माओं से नहीं घबराएगा जो रात को चलते फिरते हैं। Amen. So there are demons that walk by night. ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो रात को चलती फिरती हैं। There are demons that influence dreams, give dreams to people. ऐसी दुष्ट आत्माएं जो प्रभावित करती हैं सपनों को या सपने देती हैं लोगों को। Nor the arrow of the angel of death which is shot in daytime. ना ही मृत्यु के दूत के तीरों से जो दिन में चलाए जाते हैं। Now, this translation was taken from Aramaic. ये एरामिक से हुआ है अनुवाद। और जो पैशन ट्रांसलेशन है वो भी एरामिक से लिया गया है। पैशन ट्रांसलेशन भी एरामिक से लिया है। उसमें देखिए क्या लिखा है। Let's see what it says. You will never worry about an attack of demonic forces at night. तू कभी भी शैतानी ताकतों के हमले से नहीं घबराएगा रात को। You nor have to fear a spirit of darkness coming against you. ना ही अंधकार की आत्मा तेरे विरुद्ध आते तो उससे घबराने की जरूरत पड़ेगी। Amen. Hallelujah. So, I want to tell you a story so that you understand. एक कहानी बताना चाहता हूँ ताकि आप समझो। I'm telling you, जब आप इस बात को समझ जाओगे कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों को दिया है। When you will understand how great an authority God has given to His sons and daughters. क्यों आज लोग इतने गलिबल हैं कि कोई भी गलत भविष्यवाणी को खा लेते हैं सीधे? Why are people so gullible today that they eat any wrong prophecy? क्योंकि वचन में सशक्त नहीं है। Because they are not strong in the word. कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, Anyone comes says anything, डर जाएंगे। they will be afraid. आपको पता होना चाहिए आप कौन हो। You should know who you are. Amen. तो मैं आपको आज एक बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी बताने वाला हूँ। I'll tell you a very powerful testimony today. जब मैं अफ्रीका में था। When I was in Africa. तैयार हैं आप? Are you ready? हाँ। So अफ्रीका में हम लोग कीनिया गए युगांडा के बाद। We went to Kenya outside Uganda. In और Africa. वहां पे ब्लैक डॉट है, व्हाइट स्क्वायर के अंदर एक ब्लैक डॉट है। And in Africa, in many places, we saw a small board by the roadsides, a white board with a black dot in the center. हमने वहाँ पास्टर से पूछा ये क्या है, तो इन्होंने कहा यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये हाईली डिमोनिक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। We asked the pastor, what is this area? They said, this means this is a demonic area where there are many accidents. और ये एक बहुत ही ये अट्रैक्शन था क्योंकि धूप में पानी गिरता रहता था इससे और कई लोगों को आवाज आती थी रोने की, इसीलिए इसका नाम है क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा। This was a tourist attraction because there would be water flowing out of this rock in the middle of hot heated sun, and then people would come and see this place. और ये कोई कहानी नहीं है, मैं आपको कोई फेक कहानी नहीं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड है। अभी आपको न्यूज़ भी दिखाऊंगा। This is not a fake story. I'm showing you a documented news. जितने लोग वहां जाते थे, अगर किसी को रोने की आवाज आई इस पत्थर की तो उसकी मृत्यु हो जाती थी कुछ हफ्तों के अंदर। When people would go there, many people would hear someone crying, the sound of someone crying, and many of those people, if they heard them cry, they would die in some days. इसका नाम ही है क्राइंग रॉक, क्राइंग स्टोन, क्राइंग रॉक। इसको रोने वाला पत्थर कहा जाता है काका में। So 2013 में मैं अफ्रीका गया और टीम के साथ टीम ने प्रार्थना करी इस जगह पे। 2013 I went to Africa with the team. हमने We prayed. इस स्पॉट पे प्रार्थना करी गई। We were at that हमने spot. प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार लिया। We took authority in the name of Lord Jesus. और हमने कहा आज के बाद ये रॉक जो है ये रोना बंद होगा इसका यीशु का नाम में। And we said after today this rock will stop crying in Jesus' ये name. रॉक रोएगी नहीं अब। We said this rock will not cry और anymore. कोई मृत्यु नहीं होगी अब इस जगह में। And no death will take place in this place. 2013 में क्या क्या हम आ गए। We said it in 2013. We came back. अब क्या हुआ? What happened then?
अब आपको 2020 का न्यूज आर्टिकल दिखाता हूं, I'm showing you a न्यूज 2020 में जो आया है। news article of 2020. Can you put the news article? Hallelujah. Kakamega crying stone no longer rocks after he stopped shedding tears. काकामेगा का जो पत्थर था उसने रोना बंद कर दिया है। न्यूज में आया है पानी बहना बंद हो गया, वहां किसी का मरना बंद हो चुका है। Now no more water flows from that rock. No one dies in that place anymore. हालेलुया। ये 2020 में और 19 में न्यूज आने लगी बाहर कि 6 साल हो गए वो वहां से पानी, सब लोग परेशान है, भैया क्यों रोना बंद कर दिया, किसी को नहीं पता। 2019 this news came out, the rock has stopped crying. No one knows why. 2019 से न्यूज आने लगी, हम कब थे 2013, 6 साल हो गए। उस प्रार्थना के बाद पानी बहना बंद हो गया, वो रॉक ने रोना बंद कर दिया है। 2019 the news came out. It's been 6 years. There's no more water coming out, no more tears from that rock, no more crying. और अगर आप घर जाके इसके बारे में रिसर्च करते हैं, सब लोग कह रहे क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं रो रहा, क्यों नहीं रो रहा ये पत्थर, हमें पता है क्यों नहीं रो रहा ये पत्थर। You go home and study about it. People are saying, why is it not crying anymore? Is it climate change? Is it what?